تو میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں. ایک کام کرو, اللہ آٹومیٹک سب دے دے گا. اور وہ کام کیا ہے معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لے, اللہ دل کی بیماری بھی دور کرے گا اور جسم کی بیماری بھی دور کر دے گا. آج میں نے بخاری شریف کی ایک حدیث پڑھی, قاریانی صاحب آپ نے تو سنا ہوگا, ہمارے نبی فارسی بھی بولے ہیں. میرے کو ایک ٹینشن تھا کہ ہمارے نبی پوری زندگی عربی بولے, تو آج بخاری شریف کی ایک حدیث میں نے دیکھی جس میں صاف لکھا ہے کہ ہمارے نبی فارسی بھی بولے. فارسی یعنی پرشین. اور وہ کب بولے؟ کیونکہ ہمارے نبی کے پاس ایران کے لوگ آتے تھے, تجارت کے واسطے آتے تھے, وہ پرشین بولتے تھے. جیسا کوئی انگلش بولتا ہے تو ہم بھی تھوڑی تھوڑی انگلش بولتے ہے نا. ہمارے والے کو انگلش نہیں آتی. آتی؟ ارے بھائی ہاں بول یا نہ بول بھائی, آتی ہے تو الحمدللہ. میں اردو میں بیان کر رہا ہوں نا, آپ کسی دن بولو تو انگلش میں بھی بیان کروں گا, کیونکہ ہم لوگوں نے سیکھا, محنت کی, اور انگلش بولنے میں کوئی گناہ ہے؟ لیکن میں دیکھتا ہوں 2 آدمی انگلش بولے نا تو ہمارا جوان ایسا دیکھتا ہے جیسے کوئی پوپٹ دیکھتا ہے. کیوں بھائی, کیا ہو گیا؟ وہ انگلش بولا تو کیا ہو گیا؟ جنتی ہو گیا. تو بھی سیکھ لے بھائی, اللہ نے دیا ہے. اور زبان سیکھنے میں کوئی گناہ؟ ارے بولو نا زبان. لیکن ہم کو انگلش آتی ہے, کب بولے گا معلوم؟ جب 4-5 لڑکی کھڑی ہوگی نا تو ہم کو انگلش آتی ہے. اوکے ہاں, اور پھر کیا بولے گا؟ تھینک یو, سوری, اور وہ میسج میں آئی لو یو. یہاں ہماری انگلش ختم ہو گئی. صحیح بول رہا غلط بول رہا میرے دوستوں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کو بتاؤں ہمارے نبی نے کتنے اچھے انداز میں پرشین بولی. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ, یہ سننے جیسی بات ہے, حضرت ابو ہریرہ گھر میں تھے اور سوئے تھے. بولو گھر میں. ہمارے نبی کو خبر ملی کہ ابو ہریرہ بیمار ہے. بولو ابو ہریرہ. ابو ہریرہ غریب آدمی ہے, ہمارے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا؟ خبر ملی کہ ابو ہریرہ بیمار ہے. ہم کو بھی بہت سو کی خبر ملتی ہوگی بیمار ہے, جاتے دیکھنے. بلکہ سوچتا ہے بیمار ہے تو بیمار ہے, میرا کام کون دیکھے گا؟ سیدھی بات ہے کہ نہیں؟ اللہ حفاظت فرمائے. حضرت ابو ہریرہ بیمار ہے, ہمارے نبی گئے اور دیکھا کہ ابو ہریرہ یوں پیٹ پکڑ کے یعنی پیٹ میں درد ہو رہا ہے. تو ہمارے نبی نے اتنا اچھا جملہ فرمایا, در شکم در دست. در شکم در دست, یعنی ہمارے نبی عربی بولنے والے لیکن فارسی میں بولے تاکہ سامنے والا خوش ہو جائے. فرمایا در شکم در دست, یعنی تمہارے پیٹ میں درد ہے. تو ابو ہریرہ نے کہا بہت درد ہے, بہت درد ہے. کیا کرتے ہمارے نبی, کیا کرتے؟ کوئی دوا لا کے دیتے نا. ارے کوئی دوا دیتے نا. کیا فرمایا؟ قم یا ابا ہریرہ, ابو ہریرہ کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. ابو ہریرہ یوں پیٹ پکڑے ہوئے, اللہ کے رسول بہت درد ہوتا, کھڑے ہو جاؤ, وضو کرو وضو کرو. حضرت ابو ہریرہ, اللہ کے رسول بہت درد ہوتا. کیا فرمایا؟ فصلی فإن فی الصلاۃ شفاء, 2 رکعت نماز پڑھ لے, اللہ تیرے پیٹ کے درد کو دور کرے گا. ابو ہریرہ فرماتے اللہ کی قسم, کھڑا ہوا تو پیٹ میں درد تھا, وضو کیا تو پیٹ میں درد تھا, نماز کی نیت شروع کیا تو پیٹ میں درد تھا. کہا سلام پھیرنے سے پہلے ایسا لگا ابو ہریرہ کو کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا. میں یہ نہیں کہتا کہ دوا نہیں کھانے کا, یہ یقین کی بات ہے, یقین کی بات ہے. دوا تو کھانا ہے بھائی, لیکن اگر کوئی یقین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا, اللہ نماز میں روح کی بیماری کو بھی شفا دیتا ہے, جسم کی بیماری کو بھی شفا دیتا ہے. اس لیے میرے پیاروں, ایک بات سنا کے بات ختم کروں. میں نے پہلے بھی ولساڑ میں سنایا, آج بھی سناتا ہوں, اور اس لیے سناتا ہوں کہ میں نے سنا ماں بہنیں بھی ہے نا, ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے تو ان کو بھی فائدہ ہو جائے. ایک بات سناتا ہوں, سب سننا. ہاں, یہ میں نے کون سے صحابی کا بھی واقعہ سنا ہے؟ زور سے بولو نا, کون؟ حضرت ابو ہریرہ. نام بھی بڑا عجیب ہے بھائی, ابو ہریرہ. ابو ہریرہ کا ترجمہ معلوم ہے؟ بلی کا باپ. ابو باپ, ہریرہ چھوٹی بلی, چھوٹی بلی کا ابا. ہاں, آج کسی کو بولے اے بلی کا باپ ادھر, غصے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن ہمارے نبی نے جب کہا ابو ہریرہ, حضرت ابو ہریرہ کا اپنا نام کیا تھا کسی کو پتہ نہ چلا, سب نے ابو ہریرہ کہنا شروع کیا. کہا میرے نبی نے جو نام دے دیا اس سے بڑھ کے کوئی نام نہیں ہوگا. اور یہ نام کیسا آ گیا؟ ہمارے نبی نے کیوں بولا بلی کا ابا کیوں بولا؟ بھائی ہمارے نبی نے ان کو بلی کا ابا کیوں بولا؟ ایک حدیث میں کیا لکھا ہے معلوم ہے؟ ظہر کا نماز کا وقت ہوا. کون سی نماز کا؟ حضرت ابو ہریرہ ایسا سوئے, بولو ایسا سوئے, اور ان کی جو چادر ہے نا, چادر ادھر ہے, ان کی چادر ادھر ہے, اور ابو ہریرہ کے پاس چھوٹی بلی تھی. بولو ابو ہریرہ کے پاس چھوٹی بلی, وہ بلی چادر پہ سوئی ہے.
भाई अबू हुरैरा इधर सोए हैं और बिल्ली कहां पे सोई है? और जोहर की अजान हुई, भाई हजरत बिलाल अजान देते थे, हजरत बिलाल ने अजान दी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। कौन सी नमाज? तो हजरत अबू हुरैरा यूं उठे, देखा कि चादर पे कौन सोई है। अब अबू हुरैरा को ऐसा कि अभी उठेगी, लेकिन वो अल्लाह ने सुलाया था। अल्लाह सुलावे तो उठे, हम होते तो क्या करते? करते कि नहीं करते? अबू हुरैरा सोच रहे हैं नींद खराब होगी, बिल्ली की नींद खराब हो जाएगी, उठाऊंगा तो बिल्ली की नींद खराब होगी। अबू हुरैरा ने वहां से कुछ चाकू या छुरी लिया और कपड़े को यूं काट दिया, भाई अपना कपड़ा काट दिया, बिल्ली को जागने नहीं दिया, सोने दिया, खुद उठ के चले गए। अब कपड़ा कटा हुआ था, भाई नीचे का कपड़ा बराबर और ऊपर का कपड़ा कटा हुआ, तो यूं घाट वाट मारी और जोहर की नमाज पढ़ने गए। जब जोहर की नमाज पढ़ के अल्लाह के रसूल ने देखा, अल्लाह के रसूल ने कहा अबू हुरैरा ये कैसा कपड़ा पहना, ये घाट वाट वाला कपड़ा कैसा पहना? तो कहा अल्लाह के रसूल क्या करता, बिल्ली सोई थी मेरे कपड़े पर। हमारे नबी ने कहा अंता अबू हुरैरा, तुम तो बिल्ली के अब्बा बन गए, जैसा बाप बच्चे से मोहब्बत करता तुमने बिल्ली से मोहब्बत की, तब से नाम ही अबू हुरैरा हो गया। सोचो वो सहाबा थे जो जानवरों से मोहब्बत करते थे, इंसानों से कितनी मोहब्बत करते होंगे। खैर मेरे दोस्तों, मैं बात खत्म कर रहा हूं, सब लोग साथ में आएंगे ना, एक बात पे आ जाएंगे ना। मैं कौन से सहाबी का नाम ले रहा हूं? ये घर में बोलो अबू हुरैरा कहां पे है? ये मेरी माँ बहनें भी सुने, आप लोग भी सुने, अबू हुरैरा कहां पे है? घर में। आखिरी बात, अबू हुरैरा घर में, कोई दरवाजा खिटखिटा रहा है जोर जोर से, ठक 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 दरवाजा। अबू हुरैरा घबराए कि मेरे घर पे कौन सा दरवाजा खिटखिटाता। फकीर आदमी उठे और जल्दी से दरवाजा खोला तो औरत, बोलो कौन? और पर्दे में औरत, उस जमाने में ऐसा लंबा पर्दा लटकाई हुई औरत थी। तो अबू हुरैरा ने कहा बहन कहाँ आई, क्यों आई? तो वो तो रो रही है। अरे अबू हुरैरा ने कहा बहन ये मेरे घर में क्यों आई और दरवाजे पर क्यों आई? वो रो रही है। अबू हुरैरा ने कहा बहन रोना बंद कर तो मेरे को समझ पड़े क्यों आई है। तो कहती है मसला पूछने आई। क्या पूछने आई? मसला पूछने। तो अबू हुरैरा ने कहा मेरे को नहीं, अल्लाह के रसूल को पूछने का, मेरे को मसला नहीं पूछने का। तो औरत रोते रोते कहती शर्म आती वहां जाने, आपके पास आई हो, जवाब दे दो तो बहुत एहसान होगा। अबू हुरैरा ने कहा पूछो। औरत रोई। ए सुनना वलसाड़ वालों, रोते रोते क्या बोली मालूम औरत? मैं बहुत बड़ी गुनहगार हूं, मेरे से जीना हो गया और उसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई और 9 महीने के बाद बच्चा भी आ गया। अब वो बच्चा मैं लेके किसके सामने जाती, इसलिए कि उसका बाप तो है नहीं। तो मैंने छुरी से बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए और बच्चे को जंगल में फेंक दिया। अभी मैं आपके पास आई हूं, अल्लाह मेरे को माफ करेगा? अल्लाह मेरे को माफ करेगा? इसलिए कि मैं जीना, उसके बाद बच्चा, हराम का बच्चा पैदा और बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए, फेंक दिया। मैं आई हूं आपके पास, अल्लाह मेरे को माफ करेगा? अरे अबू हुरैरा गुस्से में खड़े हुए और कहा उखरुजी, जिसको हम लोग कहते गेट आउट, चली जा, जा जा यहां से जा, मां लकी मिन सबील, कोई अल्लाह तेरे को माफ नहीं करेगा। जीना करवाती है, बच्चा पैदा होता है, हराम का बच्चा, और कैसी मां है जो बच्चे के 2 टुकड़े करती है, जा चली जा। वो औरत रोते रोते, बोलो वो औरत रोते रोते चली गई। यहाँ अबू हुरैरा कांप रहे। इतने में एक सहाबी आए और आकर का अबू हुरैरा अल्लाह के रसूल अभी बुला रहे, अर्जेंट बुला रहे। अबू हुरैरा दौड़ते दौड़ते गए, अल्लाह के रसूल सलाम अलैकुम, क्या हुआ? हमारे नबी ने कहा वो मेरी उम्मत की औरत आई, उसको क्या जवाब दिया? मेरी उम्मत की एक औरत तुम्हारे दरवाजे पर आई, क्या जवाब दिया? अबू हुरैरा गुस्से में कहने लगे अल्लाह के रसूल वो जीना कराई और बच्चा पैदा हुआ और बच्चे को मार डाला, मैंने उसको कहा निकल जा, तेरे को अल्लाह माफ नहीं करेगा। हमारे नबी की आंखों में आंसू थे। कहा अबू हुरैरा क्या उससे बड़ा गुनहगार न बताऊं, वो औरत से बड़ा गुनहगार न बताऊं? तो अबू हुरैरा ने कहा अल्लाह के रसूल वो औरत से बड़ा गुनहगार कौन होगा? हमारे नबी ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, इससे बड़ा गुनहगार मेरा वो उम्मती है, मर्द हो या औरत, वो है जिसको नमाज का वक्त मिले और जानबूझ के नमाज को छोड़ दे। नमाज का वक्त मिले, अजान की आवाज आवे, नमाज पढ़ने जा सकता है, मगर जानबूझ के नमाज छोड़ देवे, वो उस औरत से भी बदतर है जो जीना करा के हराम का बच्चा पैदा करके कत्ल करे। वो इतनी बड़ी गुनहगार नहीं जितना बड़ा गुनहगार बेनमाजी होता है। ये कौन कह रहे हैं? बोलो हमारे। तो मेरे प्यारों आ जाओ ना सब, पूरे वलसाड़ वालों, आज एक बात पे जम जाओ। देखो सब बातें बाद में,
ऑटोमेटिक नमाज पढ़ो, दिल नरम हो जाएगा, लोगों के लिए मोहब्बत का परवाना बनेगा। जितना नमाज नहीं पढ़ोगे दिल सख्त होगा, दुश्मनी बढ़ती जाएगी। जितना नमाज पढ़ोगे दिल नरम होगा, मोहब्बतें बांटते चले जाओगे। कौन कौन तैयार है भाई नमाज पढ़ेंगे? अच्छा एक सवाल, ईद की नमाज हुई वलसाड में? किसने किसने पढ़ी भाई? जिसने पढ़ी वो हाथ ऊपर कर दे। माशाअल्लाह, पढ़ी ना पढ़ी? मैंने भी हाथ ऊपर किया भाई, मैं तो पढ़ाया, इसलिए बोलो पढ़ी ना आपने ईद की नमाज? पढ़ी ना ईद की नमाज? बल्कि जो नहीं पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ने जाता होगा ना, बीवी धक्का मारती है, जा बेशरम, जा कम से कम ईद की नमाज तो पढ़। हालांकि आपको मालूम है ईद की नमाज नंबर 2 है। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा नंबर 1, ईद नंबर। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा फर्ज, ईद की नमाज वाजिब। इसीलिए आपने देखा होगा ईद की नमाज की सिचुएशन अलग है। ईद की नमाज में अजान किसने दी? नहीं हुई ना अजान? इकामत, तकबीर भी अलग अलग, अल्लाह अकबर, हाथ बांधा, फिर अल्लाह अकबर, छोड़ दो, अल्लाह अकबर, छोड़ दो, अल्लाह अकबर, हाथ बांधा। दूसरी रकात में भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एकदम अलग नमाज हुई, इसलिए कि वो नंबर 2 वाली है, वाजिब। और फजर की नमाज, मुसाफिर कोई होवे ना, कोई मुसाफिर, पूछो मुफ्तियों से फतवा पूछो, कोई मुसाफिर आवे वलसाड में आवे, जैसा बंबई से कोई आया, अब वो मुसाफिर हो गया भाई, 78 किलोमीटर चला तो मुसाफिर हो गया। बंबई से आया, सब लोग ईद की नमाज पढ़ने जा रहे, वो यूं बैठा है, उसको किसी ने कहा ईद की नमाज पढ़, मेरे को नहीं पढ़ना। मैं कसम खाकर कहता हूं वो नहीं पढ़ेगा, उस पर कोई गुनाह भी नहीं होगा, कोई गुनाह नहीं होगा, क्योंकि मुसाफिर पे ईद की नमाज नहीं है। बोलो मुसाफिर पढ़े तो सवाब है, नहीं पढ़े तो कोई गुनाह, क्योंकि ये नंबर 2 की नमाज है। बोलो ईद की नमाज नंबर 2 और फजर नंबर। ईद की नमाज सबने, फजर, इसका मतलब कितना बड़ा पाउली है, मैं अक्सर बोलता हूं ये मैं क्या पहना हूं? कुर्ता, ये वाजिब। अरे बोलो ये, और ये जो मैंने पहना हूं पैजामा, ये फर्ज। ये ईद की नमाज, ये फजर की नमाज, ये वाजिब। और ये अगर आप लोग सिर्फ वाजिब पहन के आओ तो भाई, यहां अभी मैं बयान कर रहा हूं और यहां कोई सिर्फ शर्ट पहन के आ जावे, क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? सब इधर उधर भागेंगे कि नहीं? इसको निकालो निकालो निकालो। कितने लोग बोलेंगे इसको जिन्नत आ गया, जिन्नत आ गया, और मैं भी माइक पे बोलूंगा ए नंगे को निकालो, ये पागल है, निकालो। जो सिर्फ वाजिब किया, फर्ज नहीं किया, वो पागल हो गया। तो मेरे दोस्तों, जो सिर्फ शर्ट पहना, पैंट नहीं पहना, दुनिया वालों की नजर में पागल हो गया। तो वलसाड वालों, जिसने ईद पढ़ा और फजर नहीं पढ़ा, वो फरिश्तों की नजर में नंगा हो गया, पागल हो गया। इसलिए मेरे प्यारो, ऐसे धोखेबाजी वाले काम मत करो कि ईद की नमाज तो पढ़ रहे हो और फजर की नमाज के जनाजे उठाते हो, वाजिब पढ़ते हो और फर्ज छोड़ते हो। ये अल्लाह के साथ धोखाबाजी हो रही मेरे दोस्तों। दुनिया वालों को धोखा दोगे चलेगा, अल्लाह के साथ धोखाबाजी वाला मामला नहीं चलेगा। इसलिए पूरा मजमा साथ में बोले इंशाअल्लाह कल की फजर से नमाज शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो 3 काम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। नंबर 1 बोलो सबसे बड़ा कुदरत वाला कौन? नंबर 2 अपने दिल को क्या करोगे? साफ करो। और नंबर 3 5 वक्त की, अरे नमाज पढ़ लो जन्नती बन जाओ। अल्लाह ने फरमाया नमाज पढ़ लो, रोजी अल्लाह भर भर के देगा। मैंने कहा ना, नमाज में बॉडी में भी शिफा, नमाज पढ़ो तो रूह में भी शिफा, और नमाज पढ़ो तो पैसा ही पैसा। मैं नहीं बोलता, अल्लाह कहता 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, रोजी की फिक्र मत करना, रोजी तेरे दरवाजे पे आएगी। जीएसटी का कानून लगा होए कि कोई भी कानून लगा होए, तू नमाज का कानून निभा ले, अल्लाह रोजी पहुंचाता जाएगा, पहुंचाता जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वामुर अहलक बिस्सलाति वस्बिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अल्लाह कहता तू और तेरी फैमिली सारे के सारे नमाज वाले बन जाओ। अल्लाह कहता रोजी की फिक्र मत करना, रोजी तेरे दरवाजे तक पहुंचा दूंगा। पढ़ेंगे नमाज? नहीं बोलो, पढ़ेंगे नमाज? रोजी नहीं मिलेगी, अकेले पढ़ेंगे तो नहीं मिलेगी। अल्लाह ने कहा वामुर अहलक, पूरी फैमिली को पढ़ना पड़ेगा।
हम भी पढ़ेंगे, बीवी भी पढ़ेगी, माँ भी पढ़ेगी, अब्बा भी पढ़ेंगे, बच्चे भी पढ़ेंगे। अरे बाप भी उठाएगा बच्चे को उठाने का, बेटी को उठाने का, चलो 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 नमाज पढ़ो। इससे कि पूरी फैमिली नमाज पढ़ती जाएगी, अल्लाह छप्पर फाड़ के रोजी देता जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारों, मेरे को है ना 2-3 ऐलान करना है। एक तो मेरे को ऐलान ये करना है, एक हमारी बहन है फातिमा, मौलाना सुलेमान जो यूके में रहते हैं, उनकी बीवी है फातिमा, बहुत बीमार है। दुआ करें अल्लाह ताला हमारी उस बहन को शिफा अता फरमाए, आमीन बोले। इसी तरह हमारे वलसाड के एक माज भाई है, वो भी बहुत बीमार है, कौमे में है और दिमाग का ऑपरेशन हुआ है। दुआ करें अल्लाह ताला उनको भी शिफा अता फरमाए। और तीसरी बात, मेरी माँ भी बहुत बीमार है, आप दुआ करें अल्लाह मेरी वालिदा को भी शिफा कामिल अता फरमाए। और एक बात, हमारे मौलाना अशरफ साहब हो या कारी अनवर साहब हो, कारी अनीस साहब हो, मौलाना उस्मान साहब हो, हाफिज सिद्दीक साहब हो, या जितने भी मेरे दोस्त अहबाब यहाँ पे जिन्होंने मेरे को दावत दी, ग्रीन पार्क में बुलाया और खिलाया, मैं तमाम का जितना मजमा बैठा है, मेरी माँ बहनें बेटियां और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि सब नमाज पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं बोलो ना, अमल करेंगे इंशाअल्लाह। एक बार हाथ ऊपर करो, बोलो पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, 2 ऐलान और मेरे को करना है, आप 2-3 ऐलान करना। एक ऐलान ये करना है, कौन चाहता है कि कयामत के मैदान में नबी हमारी सिफारिश करे? हाथ ऊपर करे भाई, सब चाहते हैं? नहीं बोलो ना, सब चाहते हैं। एक दुआ लेकर आया, खुद हमारे नबी फरमाते फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ ले, फिक्र मत करना कयामत में कोई इधर गिरे कोई उधर गिरे, तू फिक्र मत करना, तेरी कोई सिफारिश करे न करे, खुद मोहम्मद तेरी सिफारिश करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ने को तैयार है भाई? एक दुआ है भाई, थोड़ी 1.5 लाइन की दुआ है, 2 लाइन की दुआ है। अल्लाहुम्मा आति मुहम्मदनिल वसीला वजअलहु फिल मुस्तफीन महब्बता व फिल आलमीन दरजता व फिल मुकर्रबीन ज़िक्रा। हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बताई, हर फर्ज नमाज के बाद ये दुआ पढ़ ले। हमारे नबी फरमाते कयामत में जो होगा वो होगा, लेकिन मोहम्मद तेरी सिफारिश करेंगे। बोलो सल्लल्लाहु